So, welcome to my channel Code with Rahul Kumawat, and this is lecture one on binary search. I'm starting binary search and I'm writing code now. Actually, in previous lecture, in previous video, I have told to you that what is the time complexity in case of binary search. So, in time complexity in case of binary search would be order of log of base to n. So now we are talking that how we can write a code in binary search. First of all, I will write the code and then we will solve a exercise on lead code. This is all about this lecture. So I'm writing code right now. So first of all, uh, it is given that the array is sorted. So if array is sorted, it means array is like this. For example, if array is sorted, then suppose this is an array and given that array is sorted, it means, for example, this is an array. So, for example, if it is 2, it is 3, it is 4, it is 5, and it is 6. So, it is sorted array because it is continuously increasing whenever we are traversing from here to there. So, this is called sorted array. Now, we need to search a key which is called key. So, we need to search a key in this array. So, what we are doing in this case is we start from integer 0 because we start from here and the last element would be the array dot size minus 1. So the first element where we are going to starting is 0 and the last element where we have reached will be array of j dot size minus 1. So in this case, now we are going to traverse a loop where I should be lesser than j because we are traversing from first element to last element. And we will calculate the mid element. Mid element will be I plus j divided by 2. So therefore, we calculate mid element by dividing I plus j divided by 2. So therefore, we calculate the mid element here. In mid element, we ensure that if if array of m, if it is equal to k, if it is equal to k, it means return true. It means there exists a array of k in this. There exists a k which is in the array. So k is going to exist in this array if array of m is equal to k. Suppose if suppose if array of m is greater than k, if array of m is greater than k, it means what happened? If array of m is greater than k, it means we have reached the higher position, but m exists in this domain only. For example, suppose we have reached the we have reached here till 5, but we should not reach till 5 because k exists in 2, 3, and 4. So what we will do in this case is we will traverse baked in. We will traverse baked in. So for that, what we are doing in this case is z is equal to m minus 1 because 5 to 6 में तो यहाँ पे k है नहीं, तो अगर 5 to 6 में k नहीं है तो वी विल स्टार्ट कि 2 3 4 में चेक करते हैं कि 2 3 4 में k है कि नहीं है. सो j विल बिकम m माइनस 1. और अगर ऐसा नहीं है तो अब कौन सी कंडीशन बच गई है? अगर वैसा नहीं है तो अब ओनली ये कंडीशन बच गई है कि 2 3, ये कंडीशन बच गई है कि array of m is lesser than k.
इट मीन्स एरे ऑफ एम इज लेसर देन के का मतलब है कि के इस वाली एलिमेंट में नहीं आ रहा, तो मतलब एक इस आगे वाली एलिमेंट में आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एम प्लस वन कर देंगे। तो सिंपल ये आपका बाइनरी सर्च का कोड होता है, जिससे हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा लीड कोड का क्वेश्चन। सो इन लीड कोड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट बैड वर्जन। पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या ये क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं। So you are a product manager and currently leading a team to develop a new product. Unfortunately, the latest version of your product fails the quality check. Since each version is developed based on previous version, all the version after a build version are also bad. Just suppose you have n version 1, 2, 3, 4 until n. You want to find out the first bad one, which cause all the following one to be bad. You are given an API tool is bad version which return whether version is bad or not. Implement a function to find the first bad version. You should minimize the number of calls to the API. सिंपल ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज हमारे पास में n वर्जन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल n तक वर्जन है। तो यू वी वांट टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वन, कि फर्स्ट बैड वर्जन किस में है, कि 3 में फर्स्ट बैड वर्जन है, कि 4 में फर्स्ट बैड वर्जन है, कि 6 में फर्स्ट बैड वर्जन है, कि एन किस में हमारा फर्स्ट बैड वर्जन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब सिंपल इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं कि अगर सपोज करो हमारे पास में एरे है विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल एन तक है। अगर हम इसमें मिड एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं, मिड एलिमेंट सपोज आ जाता है 5, कि 5 हमारा मिड एलिमेंट है। और अगर 5 हमारा बैड वर्जन नहीं है, ध्यान सुनना बात को, 5 इज नॉट द बैड वर्जन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर 5 बैड वर्जन नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपली, सपोज एरे इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि आई यहाँ पे 0 था, जे यहाँ पे कितना था, जे इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जे विल बी 7, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, हमने एम कैलकुलेट किया, एम कितना आया, 7/2 विच इज 3 आया। 7/2 3.5 होता है, इंटीजर में कन्वर्ट करें तो वो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो एम इज इक्वल टू 3 आया। अगर एम यहाँ पे 3 के बराबर है, एम इज इक्वल टू 3 में इंडेक्सिंग, एम इज इक्वल टू 3 में हमें कितना एलिमेंट मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर मान लो 4 बैड वर्जन नहीं है, अगर 4 बैड वर्जन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि 3 भी बैड वर्जन नहीं है, 2 भी बैड वर्जन नहीं है, 1 भी बैड वर्जन नहीं है। बिकॉज इन्होंने साफ बोल रखा है, द लेट each version is developed based on version, all the version after a bad version, all the version after a bad version or also bad। तो अगर कोई भी बैड वर्जन आ जाता है, सपोज करो 5 एक बैड वर्जन आ जाता है, तो 5 अगर बैड वर्जन है तो 6 भी बैड वर्जन है, 7 भी बैड वर्जन है, 8 भी बैड वर्जन है। समझ में आ गया? अगर 4 बैड वर्जन नहीं है तो 3 भी बैड वर्जन नहीं है, 2 भी बैड वर्जन नहीं है। लेकिन अगर मान लो 4 बैड वर्जन है, इसका मतलब है 5 भी बैड वर्जन है, 6 भी बैड वर्जन है, 7 भी बैड वर्जन है। हमें सिंपल ये देखना है हमारा एम बैड वर्जन है कि नहीं है। अगर हमारा एम बैड वर्जन है, इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे ये है, अगर हमारा एम बैड वर्जन है, तो सिंपल मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमें एम हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमें पीछे चेक करना चाहिए। जैसे सपोज करो 5 हमारा बैड वर्जन है, तो 5 हमारा आंसर हो सकता है, बट हमें 5 के बजाय अब 4 पे चेक करना चाहिए, हो सकता है 4 बैड वर्जन हो। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हम एम को कैलकुलेट करेंगे, एम पे देखेंगे कि ये बैड वर्जन है कि नहीं है। अगर एम बैड वर्जन नहीं है, अगर एम बैड वर्जन नहीं है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम आगे चले जाएंगे, क्योंकि अगर एम बैड वर्जन नहीं है तो पीछे वाले तो वैसे भी बैड वर्जन नहीं है, तो हम आगे चले जाएंगे। और अगर मान लो एम बैड वर्जन है, तो हम उसको आंसर मार्क करेंगे और कहाँ आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, क्योंकि अगर एम बैड वर्जन है तो m-1 बैड वर्जन हो सकता है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, so we start to solve this।
हमने बोला कि हम इंटीजर I इज इक्वल टू 0 रखते हैं। वी स्टार्ट कि हम I इज इक्वल टू 0 रखते हैं। J इज इक्वल टू कितना रखते हैं, n रखते हैं। J इज इक्वल टू n रखेंगे और हम एक इंटीजर आंसर यहाँ पे स्टोर करते हैं। वाइल I लेस देन इक्वल टू J हो जाए, क्योंकि I पहले से चलेगा, J लास्ट से चलेगा। ओके, सो इंटीजर m इज इक्वल टू I प्लस J डिवाइडेड बाई 2। I प्लस J डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे वही इफ और एल्स वाली कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक एपीआई दे रखी है इज बैड वर्जन नाम से। तो ये हमें बताती है कि ये नंबर बैड वर्जन है कि नहीं है। तो इज बैड वर्जन एपीआई को हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम सोचेंगे कि इज बैड वर्जन एम ट्रू है क्या। इसका मतलब है कि एम बैड वर्जन है। हमने क्या बोला, अगर एम बैड वर्जन है तो आंसर हमारा एम हो सकता है। आंसर हमारा एम हो सकता है, बट हमें पीछे चेक करना चाहिए कि m-1 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, और एल्स अगर हमारा या तो बैड वर्जन है या नहीं है। अगर बैड वर्जन है तो हमने आंसर इज इक्वल टू m कर दिया, और अगर ये बैड वर्जन नहीं है, अगर ये बैड वर्जन नहीं है तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम आगे चले जाएंगे। I इज इक्वल टू m+1 हो जाएगा। सो देखो I विल बी इक्वल टू m+1 ओनली, एंड we will then we will return answer as well, we will return answer। बट इसमें एक एज केस है अभी भी। what is the edge case in this first bad version and in this code which I have written? The edge case here it is, for example, if I is 2 raised to power 31, suppose I is int max, J is also int max, it means int max plus int max can be greater than int max. So if I plus j would be greater than int max, then m क्या हो जाएगा, integer overflow हो जाएगा। m will be integer overflow। So for that what we are doing in this case is we convert into long long। So we convert into long long। Okay, and then this is also long long। Now it should work। Now it should work as well। Okay, now, yes, it is accepted. So therefore, what you should do in this case is, again मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, this is a very good question which require the knowledge of binary search, how you will implement the knowledge of binary search। So I have solved this question. I have already told to you what is the method in which I will solve this question। तो ये बेसिकली पैटर्न है। पैटर्न किस चीज का है ये बेसिकली पैटर्न है आपके सिंपल बाइनरी सर्च को सॉल्व करने का। सो इन अगेन मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। हम हमारा जो 1 2 3 तो एन तक हमें यहाँ पे एन दे रखा है, विच इज एन इज ऑलरेडी शॉर्टेड। हमने अगर चेक किया है कि सपोज अगर हमारा एम अगर इज बैड वर्जन है, अगर हमारा एम बैड वर्जन है तो एम के आगे सारे बैड वर्जन होंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल द वर्जन आफ्टर ए बैड वर्जन ऑल्सो बैड। तो अगर मान लो एम हमारा बैड वर्जन है, एम हमारा बैड वर्जन है, सपोज सपोज एम इज बैड वर्जन, देन m+1 m+2 etc all will be bad version only। सो ऑल विल बी बैड वर्जन। तो यहाँ पे m के बाद अगर m बैड वर्जन है तो m के आगे सारे बैड वर्जन है। और इफ m इज नॉट बैड वर्जन, एंड सपोज इफ m इज नॉट बैड वर्जन, then 1 to m is also not
बैड वर्जन, क्योंकि अगर एम ही बैड वर्जन नहीं है तो वन से लेके एम तक की भी बैड वर्जन नहीं है। तो हमने यहाँ पे बस यही बोला कि अगर एम आपका बैड वर्जन है, अगर एम बैड वर्जन है तो एम हमारा आंसर हो सकता है, बट हमें पीछे चेक करना चाहिए कि अगर पीछे भी है कि नहीं है। क्योंकि एम अगर बैड वर्जन है तो एम माइनस वन का हम कुछ नहीं कह सकते, एम माइनस वन एम माइनस टू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो देयरफॉर दिस रिक्वायर्स सिंपल शॉर्टिंग प्रिंसिपल ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and I will uh, I will uh, upload lecture to today itself only. And actually, I have started two series. One is lecture, daily lecture on DSA, and second is Fang level question. Actually, I will solve Fang level questions also on daily basis. So अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है फांग लेवल कोडिंग इंटरव्यू के लिए, जो अभी SD1 के लिए अमेजन वगैरह भी हायर कर रहे हैं, तो अगर कोई वहां पे प्रिपेयर कर रहा है तो वो जो प्लेलिस्ट है वो फॉलो कर सकते हैं। उसमें हमने एक पोस्ट भी डाला है कि नाइट वाला जो प्रॉब्लम है बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, जो कि रिसेंटली फांग के SD1 की ऑनलाइन असेसमेंट में पूछा गया था। तो यू कैन ट्राई that problem also, and I will solve that problem. I will explain that problem today itself only in our daily series of Fang level question. Okay, thanks.